Okay. We are given with population of Rajasthan that is 570 lakhs and population of UP is 1660 lakhs. Area of Rajasthan is 3 lakh kilometer square and area of UP is 2 lakh kilometer square. See, we will write one by one whatever is given to us. Here the question is talking about two states. One is our Rajasthan and the other one is UP. Okay, Rajasthan and UP. So the population of Rajasthan, it is given as 570 lakhs. Okay, and population of UP is given as 1660 lakhs. Now the next thing that is given is area of Rajasthan 3 lakh kilometer square and area of UP 2 lakh kilometer square. So we will write the area. How much is the area of Rajasthan? 3 lakh kilometer square and area of UP is 2 lakh kilometer square. So we will write here 2 lakh kilometer square. Now what the question is asking, देखो अब first part पढ़ो. How many people are there per kilometer square in both these states? ये कह रहे हैं पर किलोमीटर स्क्वायर का मतलब होता है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं इन दोनों स्टेट्स में. सी अगर हम कहते हैं, देखो जब टोटल एरिया की बात कर रहा हूं मैं, इन 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर, 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर, देखो टोटल एरिया जो है राजस्थान का, जब मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट राजस्थान. सो राजस्थान में देखो इन 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर, 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर में हाउ मेनी पीपल्स आर लिविंग, कितने लोग रहते हैं? 570 लाख. सो दैट मीन्स व्हाट, अगर देखो 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर में 570 लाख रहते हैं तो 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने रहेंगे? वी विल डिवाइड 570 लाख बाय 3 lakh. So it will be cancel out, then 3 1 ja, 3 1 ja, 3 9 ja. So that means 190 log, 190 peoples are living, 190 peoples are living in 1 kilometer square area of राजस्थान. राजस्थान में 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितने लोग रहते हैं? 190. अब आते हैं यूपी में. देखो यूपी की बात करते हैं. यूपी में इन 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर, 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर, 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर में टोटल कितने लोग रहते हैं? 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर में 1660 लाख, इतने लोग रहते हैं 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर में. ओके, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर तो 1660 लाख लोग. सो 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितना रहेगा? अगेन 1660 लाख डिवाइडेड बाय 2 lakh. So it will be cancelled. 2 1 ja, 2 8 ja, 2 3 ja 0. So 830. That means 830 people are living in 1 kilometer square area of UP. यूपी के 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 830 लोग रहते हैं और राजस्थान के 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में 190 लोग रहते हैं. नाउ व्हाट इज इन द बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन? विच स्टेट इज लेस पॉपुलेटेड? कौन से स्टेट की सबसे कम पॉपुलेशन है इन दोनों में से? कम पॉपुलेशन देखो ना राजस्थान में है. राजस्थान में कितने हैं? 570 लाख और इसमें कितने हैं? 1660. सो यू विल राइट दैट राजस्थान इज हैविंग लेस पॉपुलेशन. ओके, 11.2 क्वेश्चन नंबर 8. देखो, ट्राइंगल ABC इज आइसोसेलेस विद AB इक्वल टू AC. देखो ये वाली जो फिगर है ना 11.26, पहले मैं ये फिगर ही बना देता हूँ जिसमें AB और AC साइड इक्वल हैं और हमारे पास ट्राइंगल ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है. ठीक है, तो हम वही बना लेते हैं पहले ट्राइंगल एक. लेट्स टेक अ ट्राइंगल, विल नेम इट ABC. And which kind of triangle is it? It is isosceles triangle. So that means this AB side and this AC side are equal. Okay. So now let's see the question. अब क्या क्या है उसमें? See, AD is the perpendicular and also CE is the perpendicular. See, this is given. AD perpendicular, CE perpendicular. So we will draw
टू परपेंडिकुलर्स, हम दो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं. वन इज दिस वन, दिस AD. ओके, इट इज द परपेंडिकुलर. ओके, AD. Then this CE, another perpendicular we are having, this one CE. So we'll name these now. This is CE, this is AD. Now this side, this complete side AB is given equal to how much? 7.5 centimeter. And you know AB and AC are equal, so that means AC is also 7.5 centimeter. And how much this BC is given to you? It is given as 9 centimeter. And AD is also given, this AD, ये AD जो है ना, it is given 6 centimeter. Okay, so these are the things given to you. Now just read the question once. See, AD is 6 centimeter, BC is 9 centimeter, AC 7.5, AB also 7.5. Now the question is asking, first part, find the area of triangle ABC. Area of triangle ABC we need to find. Area of triangle ABC. Now you know how to find the area of triangle. It is half multiply base multiply height. When we have to find the area, we use this formula, half into base into height. Now what I am doing, half multiply, what base I am taking. देखो इस बार ना मैं base ले रहा हूँ BC. See, this is the base of the triangle I am taking, BC. And what is the height corresponding to this base? इस बेस के कोरेस्पॉन्डिंग हाइट क्या होगी? दैट विल बी AD. AD इज द हाइट कोरेस्पॉन्डेंस टू BC. सो वी विल राइट AD. सो दैट मीन्स इट विल बी हाफ मल्टीप्लाई BC इज हाउ मच? 9 एंड AD इज हाउ मच? 6. सो 2 1 जा 2 3 जा 9 3 जा 27 centimeter square. Why I am putting square? Because we are finding area. Unit of area is what? Square. So we are getting the area of the triangle. देखो area का मतलब क्या है? What is the meaning of this area? That means ये complete part, ये हमने पूरा find out कर दिया. That means this yellow region, this is the area of the triangle, and it is how much? 27 centimeter square. Now again, if I am taking, मैं फिर से कहता हूँ कि area ही find out करेंगे, because we have to find this CE. हमें ये CE साइड फाइंड आउट करना है. नाउ इफ आई एम अगेन सेइंग एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, यू नो फॉर्मूला तो चेंज नहीं होगा, दिस विल नॉट चेंज. एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यू नो दिस थिंग. सो दैट मीन्स आई एम राइटिंग हाफ, बट दिस टाइम इफ आई एम टेकिंग बेस AB, अगर मैंने बेस AB लिया है, वट विल बी द हाइट कोरेस्पॉन्डिंग टू दिस बेस? AB के कोरेस्पॉन्डेंस में हाइट क्या होगा? इट विल बी दिस वन, CE. यस, दिस CE. अच्छा एक चीज बताओ, अगर मैं एरिया की बात कर रहा हूँ, इफ आई एम टॉकिंग ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ये मैंने 27 सेंटीमीटर स्क्वायर फाइंड आउट किया था, विल इट चेंज? क्या ये चेंज हो जाएगा अगर मैं ये वाला बेस यूज करूंगा और हाइट यूज करूंगा? नो, इट विल नॉट चेंज, इट विल रिमेन 27. क्योंकि एरिया क्या है? एरिया इज दिस येलो रीजन, ये येलो रीजन वाला एरिया है. इट विल रिमेन सेम, चाहे मैं बेस AB ले लूँ, BC ले लूँ या AC, कोई भी बेस यूज कर लूँ, दिस एरिया, दिस येलो रीजन विल रिमेन सेम, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा. सो इन प्लेस ऑफ एरिया, यहाँ पे एरिया की जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ? व्हाट वैल्यू आई कैन कीप? आई कैन कीप 27 इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाई, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ AB? आई एम हैविंग 7.5. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CE? we need to find CE, find out करना है. Now see, this 2 is in division here, so it will go to this side in multiply. 27 multiply by 2. This 7.5, it is in multiplication this side, so it will come this side as division. And सामने हमारे पास क्या बचा? What we are left with? CE. ओके, नाउ वी विल टेक दिस डेसिमल आउट. ये वाला डेसिमल अगर मैं रिमूव करूंगा तो डेसिमल रिमूव करने पे हमें ऊपर क्या मिलेगा? 10. ओके, नाउ लेट्स कैंसिल आउट. 5 2 जा 10, 5 2 जा, सॉरी 5 1 जा, देन 5 5 जा, देन 3 9 जा 27, 3 5 जा 15. नाउ दिस 5 कैन नॉट कैंसिल 9 2 एंड दिस 2, किसी को कैंसिल नहीं करेगा, सो वी विल मल्टीप्लाई. 9 2 जा 18, 18 2 जा 36.
सो वी आर गेटिंग 36 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल टू CE। अच्छा 36 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट्स में आएगा, कितना आएगा, 5 7 जा 35, देन 1 इज लेफ्ट, देन डेसिमल 5 2 जा 10। So CE how much we are getting, 7.2 centimeter. This is what we are getting CE. Okay, so these are the two things we need to find in this question. यही दो चीजें find out करनी थी. One is area of triangle ABC, other one is CE. 11.3 question number 4. This one. Okay, we are moving to this is 11.3 question number 4. Okay, see, a gardener wants to fence a circular garden of diameter. I will copy this one. ठीक है, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ इसको, then we will okay यहाँ पे कर लेते हैं इसको पेस्ट, so we don't have to go back. Just increase some size. Okay, this is the question we are having. A gardener wants to fence a circular garden of diameter 21 meter. देखो एक गार्डनर है, उसके पास ना एक गार्डन है, दिस इज द गार्डन ही इज हैविंग, ठीक है, और वो सर्कुलर शेप में है, उसका जो गार्डन है वो सर्कुलर शेप में है जिसका डायमीटर कितना है 21 मीटर. सो इफ डायमीटर इज 21 मीटर देन रेडियस विल बी व्हाट, इट विल बी हाफ ऑफ द डायमीटर ना. सो वी विल राइट 21/2 मीटर, बिकॉज सी डायमीटर अगर 21 मीटर है, डायमीटर इज 21, सो डायमीटर मीन्स डायमीटर इज कंप्लीट, दिस वन, दिस इज द डायमीटर. हाँ, इफ आई विल टेक हाफ ऑफ दिस वन, अगर मैं इसका हाफ लेता हूँ दैट मीन्स डायमीटर तो ये पूरा हो गया, बट आई एम टेकिंग आर इज हाउ मच, 21/2. ओके, 21/2. नाउ व्हाट ही वांट्स टू फेंस. फेंसिंग का मतलब क्या होता है, फेंसिंग मीन्स उसकी बाउंड्री करना चाहता है वो, है ना. वेन एवर, यस आई टोल्ड यू, वेन एवर वी आर डूइंग फेंसिंग दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट द बाउंड्री, और बाउंड्री के लिए हमें पेरीमीटर, एंड इन केस ऑफ सर्कल हम पेरीमीटर को क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस, है ना, वी कॉल इट एज सर्कमफ्रेंस. सो दैट मीन्स व्हाट, वी नीड टू फाइंड द सर्कमफ्रेंस. सो सर्कमफ्रेंस ऑफ circle, so it you know the formula, it is 2 pi r, correct. So it is 2 pi r, so that means 2 multiply 22/7 multiply by r is 21/2. So 2 to 2 cancel out, 7 1 ja 7 3 ja. Now 22 multiply by 3, how much we are getting, 66 meter. See this 66 meter is what, ये 66 meter क्या है, it is the length of the boundary. ये लेंथ है. देखो अगर मैं यहाँ से सपोज आई एम डूइंग द फेंसिंग, मैं फेंसिंग करना स्टार्ट कर रहा हूँ, सपोज दिस रेड वन, आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पॉइंट, आई एम मूविंग लाइक दिस, सो आई एम मूविंग ऑन द बाउंड्री ना, बाउंड्री पे मूव कर रहा हूँ. सो हाउ मच रोप आई एम यूजिंग इन वन राउंड, एक राउंड में कितना रोप यूज करूंगा मैं, आई विल बी यूजिंग 66 मीटर. बट द क्वेश्चन इज सेइंग वी हैव टू मेक 2 राउंड्स. सो फॉर 2 राउंड्स, 2 राउंड्स के लिए लेंथ ऑफ रोप कितना चाहिए, लेंथ ऑफ रोप, हाउ मच वी विल बी रिक्वायरिंग फॉर 2 राउंड्स. देखो ना, अगर एक राउंड तो सरकमफ्रेंस होता है, तो वो कितना आया 66 मीटर. सो फॉर 2 राउंड्स के लिए कितना चाहिए, 2 मल्टीप्लाई बाय 66 एंड इट विल बी हाउ मच, 132 मीटर. सो दैट मीन्स टोटल लेंथ ऑफ रोप, जो हमें टोटल लेंथ चाहिए ना रोप का, वो कितना चाहिए, 132 मीटर. क्योंकि देखो मैं एक बार राउंड मैंने कंप्लीट किया, इसका मतलब मैंने उसे एक बार सरकमफ्रेंस को निकाल लिया, लेकिन उसने बोला कि 2 राउंड करना है, तो 2 राउंड करना है तो मतलब क्या है, आई हैव टू मूव ऑन द बाउंड्री 2 टाइम्स, 2 बार मूव करना पड़ेगा. तो दैट मीन्स 66 प्लस 1 टाइम 66, तो 132 मीटर. नाउ द रेट ऑफ द रोप का जो रेट है ना वो है ₹4 पर मीटर, यानी कि रेट जो दिया हुआ है दैट इज ₹4
पर मीटर, 1 मीटर के लिए 4 रुपीज देना है, तो हमें टोटल कितना देना पड़ेगा, हाउ मच वी विल बी गिविंग फॉर 132, दैट मीन्स 4 मल्टीप्लाई बाय 132, सो हाउ मच, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4, 528, दैट मच रुपीज वी विल बी गिविंग, हमें वो रोप खरीदने के लिए इतने रुपए देने पड़ेंगे। कि देखो ये वाला जो क्वेश्चन अब हम करेंगे ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 11.39 क्वेश्चन, सो लेट्स सी, थोड़ा सा साइज बढ़ा देते हैं। ओके, दिस इज द क्वेश्चन वी आर हैविंग, सेजली टूक अ वायर ऑफ लेंथ 44 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे एक लड़की है, उसने क्या किया, एक वायर है उसके पास, दिस इज द वायर सी इज हैविंग, हाँ ऐसी एक वायर है, एंड द लेंथ ऑफ द वायर, इस वायर की जो लेंथ है ना दैट इज 44 सेंटीमीटर। नाउ सी बेंट इट इनटू द शेप ऑफ अ सर्कल, इसने इस वायर को मतलब बेंट किया है ना, जैसे हम इसके दो एंड को ऐसे मिला देंगे तो उसने उसको बेंट करके और क्या बना लिया, एक सर्कल बना दिया ऐसे। देखो ये वाली वायर थी, बस उसने क्या किया है, उसको ना गोल गोल करके ना एक सर्कल बना दिया बेंट करके। सो दैट मीन्स व्हाट, इसका मतलब अब ये जो 44 सेंटीमीटर था इस सर्कल के लिए वो चीज क्या बनेगी, व्हाट विल बी दिस 44 सेंटीमीटर फॉर दिस सर्कल, पेरीमीटर। यस, इट विल बी द बाउंड्री लेंथ ऑफ द सर्कल ना। देखो जो ये 44 सेंटीमीटर ये वायर की लेंथ थी, इस वायर से हमने क्या किया है, सर्कल बनाया है, दैट मीन्स व्हाट, whatever this 44 centimeter is, now it has become the boundary length of this circle, सर्कल की बाउंड्री की लेंथ हो गई, एंड बाउंड्री लेंथ ऑफ द सर्कल इज व्हाट, इट इज circumference, so we will be writing circumference of circle is equal to what, length of wire, जो भी वायर की लेंथ है उसी के तो इक्वल आएगा, so that means we will be writing circumference of circle, what is the formula, 2 pi r equal to length of wire, length of wire is how much, it is 44, so now we will put 2 multiply pi is what, 22 by 7, r we need to find, radius हमें find out करना है, equal to 44, so that means 2 into 22, ये 44 आएगा, so r is equal to 44 multiply by 7, ये 7 इधर आके ना मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये 2 into 22 44 इधर आके डिवाइड में, 44 से 44 कैंसिल, दैट मीन्स r कितना आया, 7 सेंटीमीटर। हमें इस वाले सर्कल का रेडियस मिल गया, इट इज 7 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट वी नीड, हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड इट्स एरिया, इसका एरिया फाइंड आउट करना है। सो हाउ वी विल बी फाइंडिंग इट्स एरिया, टू फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल वी यूज द फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, एंड इट विल बी 22/7 मल्टीप्लाई बाय r इज हाउ मच, 7 into 7, so 7 to 7 cancel, now 22 into 7 it is 154 सेंटीमीटर। देखो अब हमने इसका एरिया फाइंड आउट कर दिया, कितना आया, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, दिस टाइम वी हैव टू राइट स्क्वायर बिकॉज वी आर फाइंडिंग व्हाट, वी आर फाइंडिंग एरिया। ओके, नाउ द थिंग इज, अब आगे देखो सेम क्वेश्चन, अब हम आगे पढ़ते हैं, इफ द सेम वायर इज बेंट इनटू द शेप ऑफ अ स्क्वायर, ये कह रहा है कि अगर सेम वायर, यही वाली जो वायर है ना, इसको अब क्या करना है, इट विल बी बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर, स्क्वायर की फॉर्म में बेंट कर देना इस वायर को। देखो मैंने ये सेम वायर, दिस सेम वायर आई हैव बेंट इनटू द फॉर्म ऑफ अ स्क्वायर, सो व्हाट दिस 44 विल बी नाउ, ये 44 अब क्या बनेगा इधर, व्हाट इट विल बी, yes it will be perimeter of square, correct, perimeter of square, that will be, so that means what, perimeter of square will also be 44 centimeter ना, why it is 44, because the same wire is used, इस वायर को बेंट करके हमने क्या बनाया है, the same wire is used to make the square, so this 44 becomes perimeter of square। ओके, नाउ जस्ट सी वन थिंग, ये चीज मैंने तुम लोगों को उसमें बताई भी थी, हाउ वी बेंट द थिंग,
कैसे हम बेंट करते हैं, एंड द बाउंड्री लेंथ ऑफ द फिगर रिमेन्स द सेम, बाउंड्री लेंथ जो होती है वो सेम रहती है. That means if I am bending this wire in the form of square, the boundary length will be 44, and boundary length is what? It is perimeter. So now if I am writing 4 into side, the formula of perimeter of square is equal to 44. Now this side will be how much? 44 divided by 4, that means 4 1 ja 4, 11 centimeter. This is what we are getting, side of square. Now the thing is, what will be the length of each side? तो each side length हमने find out किया 11 centimeter. Now what will be the area of square? Area of square, it will be side into side, side into side. So that means 11 into 11, and how much? 121 centimeter square. Now the question is asking which figure encloses more area, the circle or square? किसका एरिया ज़्यादा है, सर्कल का या स्क्वायर का? सिंपल दिख रहा है वो तुम लोगों को, सर्कल का ही ज़्यादा है. सो सर्कल इज हैविंग द मोर एरिया, सर्कल इज हैविंग द मोर एरिया. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन. देखो कभी भी अगर तुम सेम लेंथ, अगर किसी भी सेम लेंथ की वायर को एक सर्कल और स्क्वायर में बनाओगे ना, देन सर्कल विल ऑलवेज हैव द लार्जर एरिया, सर्कल का एरिया ही ज़्यादा आएगा. ओके 9.2 क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं. हाँ ये रहा 9.2. लेट मी चेक वेयर इज 9.2. This is 9.1. Okay, this this is 9.2, and fourth question you are asking now. So in fourth question there are many part. Which part you want? Anyone. ओके चलो मैं तुम लोगों को ना 2 पार्ट करा देता हूँ इसमें से. एक फोर्थ पार्ट, चलो फर्स्ट पार्ट करा देता हूँ एक, और एक सिक्स्थ पार्ट. हाँ या फिर सेवन्थ, फर्स्ट और सेवन्थ. देखो फर्स्ट पार्ट क्या है? -4 डिवाइडेड बाय 2/3. ओके सो फर्स्ट पार्ट इज दिस वन, -4 डिवाइडेड बाय 2/3. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. हाँ सो हाउ यू विल डिवाइड, तुम लोगों को अच्छे से पता है जब रैशनल नंबर्स में हम डिवीजन का साइन होता है उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं मल्टीप्लाई में. नाउ दिस डिवीजन साइन इज कन्वर्टेड टू मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई करके जो राइट साइड में इधर होता है वो क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल. सो इट विल बी व्हाट आफ्टर रेसिप्रोकल? इट विल बी 3/2. सो 2 1 ja 2 2 ja. And see, -2 multiplied by 3, what is the answer you are getting? -6. So this is the answer you are getting, -6. Just you have to do what? When divide is given ना, जब divide होता है ना तो उसको multiply में convert करो and take the reciprocal of this one. पहले वाला सेम रहेगा. देखो एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम इसी एक्सरसाइज से. 3/13 डिवाइड बाय -4/65. देखो ये वाला लेते हैं, 3/13 डिवाइडेड बाय -4/65. ओके फिर से देखो ये तो सेम रहेगा 3/13. नाउ डिवाइड विल चेंज इनटू मल्टीप्लाई. ये डिवाइड जो है किस में चेंज हुआ? मल्टीप्लाई में. और इस साइड वाला क्या हो जाता है? रेसिप्रोकल. सो इट विल बी 65/-4. नाउ 13 1 ja, 13 5 ja. सो नाउ कैन वी कैंसिल एनीथिंग? क्या हम 4 से 3 या 5 को कैंसिल कर सकते हैं? नो. सो दैट मीन्स 5 into 3 हाउ मच इट विल बी? 15. एंड देन दिस 4 एंड टेक दिस नेगेटिव साइन. देखो ये नेगेटिव साइन है, इसको लगाना है. टेक दिस नेगेटिव साइन हियर. ओके सो इट विल बी -15/4. दिस विल बी द आंसर. यस 9.1 क्वेश्चन नंबर 5. इन दैट क्वेश्चन देखो हम लोगों को क्या दिया हुआ है? एक नंबर लाइन. सी अ नंबर लाइन इज गिवन लाइक दिस इन दैट क्वेश्चन 9.1. सी द क्वेश्चन. हाँ एंड ऑन दिस नंबर लाइन सम पॉइंट्स आर गिवन लाइक U, S, R, T, A, P, Q, B. ओके सो we'll just represent these points 0 1 2
3, then 1, minus 1, minus 2, minus 3. Now we are given between minus 2 and minus 1. Let's see, minus 2 and minus 1 USRT, okay, and APQB on that side. Okay, so we'll take this one U, then here we are having S, here we are having R, this one we are having T. Then this side between 2 and 3 we are given with P, then Q, then between A and B. Okay, this is the thing we are given in the question. Let me check. Oh sorry, A, B and PQ. I have just taken wrong points. These points I will change. Just a minute. This point is given as A, this one is as B, then here P and Q, and we need to find the values of S, R, P and Q. See, U is already given. जो U है वो -2 है, T कितना है -1 है, A कितना है 2 है, B कितना है 3. बट वी नीड टू फाइंड द वैल्यूज. यहाँ पे जो वैल्यू है ना S, R, P, Q, ये वैल्यूज कितना आएगा ये फाइंड आउट करना है. सो हाउ वी विल बी फाइंडिंग? सी, बहुत ही सिंपल है. जस्ट एक बार ये चेक करो, इन हाउ मैनी पार्ट्स द टू नंबर्स आर डिवाइडेड. देखो दो नंबर्स के बीच में कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, दो नंबर्स के बीच में, इन हाउ मेनी पार्ट इट इज डिवाइडेड. देखो ध्यान से अगर चेक करोगे, सी दिस इज द वन पार्ट बिटवीन U एंड S, देन S एंड R सेकेंड पार्ट, देन R एंड T थ्री पार्ट्स. दैट मीन्स व्हाट? इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स. आर यू गेटिंग? ये कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है? थ्री पार्ट्स में. तो इसको ना क्या करना, स्टार्टिंग से ना, जस्ट फ्रॉम द स्टार्टिंग इटसेल्फ देखो ऐसे करते चले जाओ. 1 जैसे 0 है, इसको 3/3 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 को 3/3 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 को 3/3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 को भी 3/3 से मल्टीप्लाई करो. जितने भी नंबर्स तुम्हारे पास लिखे हुए हैं ना, उनको सेम नंबर, किस नंबर से? जितने पार्ट्स में, इन हाउ मेनी पार्ट इट इज डिवाइडेड, उस नंबर से 3/3. इस -2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? अगेन 3/3. देखो अब क्या होगा, When we will multiply, जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये -2 इंटू 3/3 कितना आएगा? 2 3 जा 6/3, -6/3. और ये क्या आया? -3/3. देखो -1 इंटू 3 -3/3 आया ना, और ये -6/3. दैट मीन्स व्हाट? अगर मैं कह रहा हूं कि ये जो T पॉइंट है, इफ दिस T पॉइंट इज -3/3, देन व्हाट विल बी दिस R पॉइंट? इट विल बी -4/3. Then what will be this S point? It will be -5/3. Okay, the same case इस साइड आओ. देखो हमने R की वैल्यू फाइंड आउट करी -4/3, S की वैल्यू फाइंड आउट की, कितना आया? -5/3. नाउ इन दिस साइड देखो A पॉइंट, जो A पॉइंट है मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बन रहा है? 2 3 जा 6/3. और जो B पॉइंट है वो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बन रहा है? 3 3 जा 9/3. So that means what? What will be this P? P क्या बनेगा? What this P will be? If A is 6/3, then P will be 7/3, and what this Q will be? 8/3. And then B we are having already 9/3. So this is how we can find. पहले क्या करना है? Just try to find out the स्पेस कि कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, देन मल्टीप्लाई ऑल द नंबर्स विद द सेम न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर. ओके, और उसके बाद यू कैन इजीली राइट. देखो ये वाला क्वेश्चन जो है ना तुम्हारा, इसमें पैरेललोग्राम का एरिया ऑलरेडी गिवन है. जो 6th क्वेश्चन है, पैरेललोग्राम एरिया इज गिवन 1470, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. सो व्हेन यू विल राइट हियर एरिया of parallelogram, what is the formula of area of parallelogram? It is base into height. And it is already given 1470 centimeter square. Now what is the base and what is the height? See, base is given as 35. You can see base is AB. Base is AB and height is DL. So you will be taking AB multiplied by DL equal to 1470.
So that means AB is 35 into DL equal to 1470. So DL will be 1470 divided by 35. 5 7 ja, then 5 2 ja 10, 5 9 ja 45, 5 4 ja 20, 7 1 ja, 7 4 ja 28, 7 2 ja 14. So it will be 42 centimeter. That will be DL. The similar case you can use to find the other side also. सेम थिंग यूज करना है, दूसरी साइड भी फाइंड आउट हो जाएगी। 9.1 फर्स्ट क्वेश्चन, इट इज अबाउट हाउ टू फाइंड रैशनल नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स। हाँ, दो नंबर्स के बीच में कैसे रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है। सपोज वी आर गिवन विद -1 एंड 0। मैंने बोला कि मेरे पास ना ये दो चीज़ें हैं, -1 एंड 0, एंड वी नीड टू फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन देम। इनके बीच में ना हम लोगों को 5 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करना है। हमारे पास नंबर क्या है, -1 है और 0 है। अब तुम ये भी सोच सकते हो कि सर 0 और -1 के बीच में कोई नंबर होता ही नहीं है ना, क्योंकि अगर हम नंबर लाइन पे ऐसे बनाते हैं, यहाँ पे 0, मैं इस साइड 1 2, इधर लिख रहा हूँ -1, तो हम नंबर रैशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करेंगे। कितने रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, 5। जस्ट ऐड 1 टू दिस 5। देखो जितने भी द नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स यू नीड टू फाइंड, जितने भी रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं ना, उसमें 1 ऐड कर लो। तुम्हें 5 फाइंड आउट करना है तो 5 में 1 ऐड करके क्या आ जाएगा, 6। अगर क्वेश्चन में होता, इफ योर क्वेश्चन इज आस्किंग दैट यू नीड टू फाइंड 4 रैशनल नंबर्स ओनली, देन आफ्टर एडिंग 1 व्हाट यू विल गेट, 5। हमेशा क्या करना है, पहले 1 ऐड करना है। नाउ आफ्टर एडिंग 1 व्हाट नंबर यू आर गेटिंग, you are getting 6. so just -1 को 6/6 से मल्टीप्लाई करो, हाउ मच यू विल बी गेटिंग, -6/6। 0 को मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 6/6 से, बट यू आर गेटिंग 0/6। सो दैट मीन्स व्हाट, देखो अब इनके बीच में ध्यान से नंबर देखना क्या क्या आएंगे। देखो ये है 0/6, अगर मैं इस साइड जा रहा हूँ, मैं लेफ्ट साइड जाता हूँ तो माइनस में जाता हूँ, -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, -5/6। See all these numbers are between these two numbers। इनके बीच में आ गए ना नंबर, -6/6 और 0/6 के बीच में ये सब नंबर आ रहे हैं ना। दैट मीन्स हमने -1 एंड 0, दैट मीन्स -1 एंड 0 के बीच में हमने क्या फाइंड आउट किया, वी हैव फाइंड आउट 5 रैशनल नंबर्स। और 5 फाइंड आउट करने के लिए हमें 1 ऐड करना था। अगर 4 फाइंड आउट करने थे तब भी 1 ऐड करते, 3 फाइंड आउट करने तब भी 1 ऐड करते। सो फर्स्ट ऐड 1, देन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड विद द सेम नंबर एंड यू विल गेट योर रिजल्ट्स।